کرام، ہمارے ضلع پونچھ کے مختلف شعبہ جات میں اپنی خدمات انجام دے کر ملک و مذہب و ملت کا نام روشن کرنے والی ضلع پونچھ کی عظیم اور نامور شخصیات، جملہ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یہاں سکھ مذہب کے ہمارے دو محترم مہمان تشریف لائے ہیں، ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ سنی علماء کونسل نے یہ کنونشن اس لیے کہ ہمارے ضلع پونچھ کی وہ شخصیات جو ہمیشہ اہتمام و انتظام میں لگی رہتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جلسہ ہو یا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہو، تو سنی علماء کونسل نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے ان عظیم تعلیم یافتہ اور ایجوکیٹڈ جو ہماری ایجوکیشن میں بہت بڑا یوگدان ہے، بہت بڑی خدمات جن کی، اور وہ اپنے سینے میں بے پناہ علم رکھتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدس کو لے کر، تو آج کا یہ کنونشن اس لیے آرگنائز کیا گیا کہ ہمارے ہر مذہب کے بھائی کو یہ حق دیا جائے، اور ہمارے ان مسلمانوں کو جنہوں نے 2000 سے لے کر 2022 تک پونچھ میں اپنی قربانیاں پیش کر کے اپنی طرف سے بہت بڑا یوگدان اور تعاون دے کر کے سنی علماء کونسل کے لیے راستے ہموار کیے، علماء اہل سنت کے لیے راستے ہموار کیے کہ وہ ضلع پونچھ کے صدر مقامات پر اور ضلع پونچھ کی تحصیلوں کے مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کے فروغ کے لیے بلا لحاظ مذہب و ملت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت اگر ہم دیکھیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام رحمت کو دنیا کے سارے انسانوں کے سینوں میں اتارنے کے لیے جو اپنا کردار پیش کیا، جو صبر و تحمل اور جو عزم و استقلال اور جو تہذیب و تمدن کے گل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کی سرزمین پر کھلائے، وہ صرف کسی ایک خاص کمیونٹی کے لیے نہیں ہے، کسی ایک مذہب کے لیے نہیں ہے، کسی ایک طبقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والا ہے۔ تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا، اگر کسی مسلمان نے کسی ایسے شخص پر ظلم کیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مکمل طریقے سے پراپر طریقے پر اس کو سزا ملنی چاہیے، کیونکہ آقا کریم اس دنیا میں برادری بات اور نسل و رنگ کی تبلیغ دینے اور اس کا پیغام ہم کرنے نہیں آئے تھے، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں فروغ انسانیت کے لیے تشریف لائے تھے۔ میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے شراب کو حرام قرار دیا کہ شراب مذہب اسلام میں حرام ہے۔ اب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شراب صرف مسلمانوں کے لیے حرام ہے،
की शरीयत में है। आज दुनिया जानती है, आज जो एजुकेटेड तबका है, जो समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, जो दुनिया में इज्जत से जीना चाहते हैं, जो अपने खानदान, अपने बाप दादा और अपने मजहब के नाम को दुनिया में रोशन करना चाहते हैं, उनका मुत्तफका ये मानना है कि शराब पीकर दुनिया में कोई इंसान न तरक्की कर सकता है, ना अपने घर को आगे ले जा सकता है। अगर वो समाज में इज्जत चाहता है, सोसाइटी में इज्जत चाहता है, लोग उसको समाज में इज्जत की निगाह से देखें, तो आज दुनिया का हर पढ़ा लिखा मजहब के मानने वाला ये जानता है और ये मानता है कि शराब पीने से इंसान खुद भी बर्बाद होता है और उसका घर भी बर्बाद होता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरोग इंसानियत के लिए रिश्वत को हराम करार दिया। रिश्वत लेना और रिश्वत देना ये दोनों हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरोग इंसानियत के लिए और इंसान को कामयाबी के उरूज की मंजिल पर ले जाने के लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि तुम हर दौर में तरक्की करते चले जाओ, तुम्हारी तरक्की कभी न रुके, तुम अपनी इंसानियत की मेराज पर पहुंच जाओ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसके लिए तुम्हें रिश्वत देना और रिश्वत लेना दोनों बंद करना पड़ेगा। और ये आप भी जानते हैं, अगर हमारे समाज से, अगर हमारे निजाम से, अगर हमारे सिस्टम से, अगर हमारे मुल्क से रिश्वत को खत्म कर दिया जाए और हर इंसान हलाल रोजी की तरफ बढ़ने लगे, तो आप यकीन जानिए कि आपका ये मानना होगा कि जनाबे वाला, जब रिश्वत खत्म हो जाएगी, एक गरीब का पैसा बचेगा, एक मालदार आदमी, एक ऑफिसर, बड़ा आदमी हलाल खाएगा, और जब वो हलाल खाएगा तो वो इंसानियत की तकमील को पहुंचेगा, उसे दिल का भी सुकून मिलेगा और उसे दिमाग का भी सुकून मिलेगा। सारी दुनिया में पैगाम रहमत लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उन्होंने ये भी इरशाद फरमाया, इस दुनिया में इंसान अगर तरक्की करना चाहता है, ये आप सब जानते हैं क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों, आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, मजहब के ताल्लुक से, इंसानियत के ताल्लुक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमीन को सुनते रहते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों पर जुल्म करने को सख्ती से मना फरमाया। औरत बेटी हो, औरत बहन हो, औरत बीवी हो, औरत माँ हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया सिर्फ मुसलमानों के लिए ये पैगाम रहमत है कि वो अपनी बच्चियों को दफन न करें, वो अपनी औरतों पर जुल्म न करें, वो अपनी औरतों को तंग न करें। ये सिर्फ मजहब इस्लाम के लिए नहीं है, बल्कि जितने मजहब के लोग मानने वाले हैं, हर मजहब के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और हमारे दूसरे मज़ाहिब के लोग आगे आए तो उन्होंने कहा, औरत तो हमारे घर की लक्ष्मी है, औरत तो हमारे घर की शान है, औरत तो हमारे घर की इज्जत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी इंसानियत को यह पैगाम दिया, शराब को छोड़ना है अगर तरक्की करनी है, रिश्वत को छोड़ना है अगर तरक्की पे जाना है, भेदभाव को खत्म करना है, मजहबी इख्तलाफात को खत्म करना है। हर इंसान को हमारे मुल्क में, हमारा मुल्क नहीं, तो कहते हैं कि जनाब ये मुसलमान, हम कहते हैं ये सेकुलरिज्म का और ये सोशलिज्म का पैगाम। अभी आपने मुझसे पहले हमारे मुकर्रिरीन से सुना है, ये पैगाम अगर किसी ने सारी इंसानियत नाम है ताजदार दो जहां जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, मैं वक्त ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि आज हम बोलने नहीं आए। आज हम शमीम साहब जैसे स्कॉलर हजरात जो हमारे हैं, यहाँ हमारे ताज साहब हैं, हमारे शाह साहब हैं, हम ऐसे हजरात को जिन्होंने शुरू में हमारा बहुत बड़ा ताउन किया हुआ है इस पुंछ में सुन्नियत का काम करने के लिए, शाह मोहम्मद तांतरे साहब ने बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है, हमारे एसपी साहब ने बहुत बड़ी शफकतों से हमें नवाजा है। जब हम पढ़ के आए थे, हमें समाज में चलने का ढंग भी नहीं था, हमें इन लोगों से मुतारिफ करवाना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की खिदमत करने के लिए इन्होंने अपने नेक मशरू से भी नवाजा और इन्होंने अपना ताउन भी पेश किया। मैं इन सब का शुक्रिया भी अदा करता हूं और इन्हें इस कन्वेंशन में आने के लिए इनका इस्तकबाल भी करता हूं और इन्हें मुबारकबाद भी पेश करता हूं। आखिर में मैं दो जुमले कह दूं, सभी हजरात यहाँ आए थे, उन्होंने सुन्नी उलमा कौंसिल को बहुत मुबारकबाद दी कि आपने इतना बड़ा काम किया। ये पुंछ की तारीख में जब ये रियासत थी तब का मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक मेरा मुताला है, जहां तक मैं अपने जिला को जानता हूं, हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में पहली बार
किसी मजहब ने, किसी कौंसल ने, उलमा की किसी जमात ने ये कोशिश की है कि हम मदरसों से निकलें, रिवायती जलसों से निकलें और लंबी चौड़ी जो उलमाए किराम या अपने हिसाब से बड़ी खिदमातें उस बीच करें। तबका यहाँ पर बैठा है, वो भी हमारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से इंसानियत का जो पैगाम है वो दुनिया में अपने अपने अंदाज में पहुंचाएं। इंशाअल्लाह मैं जो कहने जा रहा हूँ इस पर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। सुन्नी उलमा कौंसिल का ये पहला प्रोग्राम है। हमारे एजेंडे में जो हमने रोड मैप तय किया है उसमें इंशाअल्लाह ये डिस्ट्रिक्ट का, पहले हम डिस्ट्रिक्ट में काम करेंगे। हमारे जहां भी डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, हमारी हाई सेकेंडरीज हैं, इंशाअल्लाह ताला सुन्नी उलमा कौंसिल वहां जाएगी और अपने अपने इलाके के लिहाज से जो है वो अनावीन मुतय्यन करेगी और उस इलाके के करीब जो हमारे एजुकेटेड लोग हैं, ऑफिसरान हैं, जिम्मेदारान सियासत हैं, जो उस इलाके के करीब हैं, वो बिला लिहाज मजहब मिल्लत हम उन्हें दावत देंगे और इंशाअल्लाह शुरू हमने किया है। आप हजरात इसमें तशरीफ लाए हैं। मैं शाह साहब को एक जुमला कहना चाहूंगा और अपनी बात को खत्म कर दूंगा कि हम खुश नसीब हैं कि इस नए प्रोग्राम को जो नए तरीके से शुरू किया इसका हिस्सा भी आज हम बने। जिस तरह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कॉन्फ्रेंस के हिस्से शुरू में ये लोग बने थे जब ये जवान थे, आज ये बुजुर्ग हो चुके हैं और ये देख रहे हैं कि इंशाअल्लाह इन्होंने जो रोड मैप तय किया था, जो इन्होंने सिलसिला शुरू किया था वो आगे बढ़ रहा है। मैं तमाम जितने सुन्नी उलमा कौंसिल के यहाँ पर हमारे जो सरबराह आला है जिला पुंछ के हमारे बेहतरीन कारी कुरान हजरत कारी अब्दुल गनी साहब जो हमारे जिला पुंछ के सरपरस्त हैं सुन्नी उलमा कौंसिल के, वो भी मेंढर से तशरीफ लाए। जहाँ जहाँ भी हमारे उलमाए किराम, हमारे ऑफिसरान, हमारे जिम्मेदारान तशरीफ लाए हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और नबी रहमत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम खिराज अकीदत पेश करें कि या अल्लाह हमारी जिंदगी में लगातार हमें वो दिन अता फरमा कि हम तेरे नबी की तालीम को घर घर पहुँचाते रहें। इस कौंसिल की सरबराही और मुकम्मल क़यादत जो है वो हजरत मौलाना सैयदुस सादात हजरत मौलाना सैयद शाहिद बुखारी साहब जो मंडी में पीर फारूक साहब के सपूत शहजादे हैं, जो पीर फारूक साहब मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के खलीफा हैं, उनके हाथ में बागडोर है। और जो मुफ्ती बोर्ड हमारा पूरे डिस्ट्रिक्ट में काम करेगा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोरन ही की नहीं बल्कि हमारे जिला पुंछ की आन बान शान हजरत मौलाना मुफ्ती गुलाम मोहम्मद साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है। और जो सुन्नी उलमा कौंसिल की रीढ़ की हड्डी है, जो दिन रात सुन्नी उलमा कौंसिल के लिए काम करते हैं, नहायत ही एजुकेटेड, नहायत ही काबिल और बहुत बड़े लिटरेरी मुफ्ती हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मारूफ साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है जो लगातार सुन्नी उलमा कौंसिल के लिए अपनी खिदमत पेश करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का आना कबूल फरमाए और हमें दीन मतीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। मौलाना बशारत सकाफी साहब और उनके साथ सुन्नी उलमा कौंसिल के जितने सेक्रेटरी हैं, वाइस सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, जितने हमारे जिला के मुख्तलिफ तहसीलों के और ब्लॉक के सदूर हैं, मैं इस अजीमुशान और ऐसा प्रोग्राम जिसको हमारा हर मुअज़्ज़ज़ शहरी और हमारे बुजुर्गों ने पसंद किया है, हमारे कायदीन ने पसंद किया है, मैं उसके लिए अपनी सुन्नी उलमा कौंसिल के हर आलिम दीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप में सादात भी हैं, हुज्जाज किराम भी हैं, तलबाए किराम भी हैं। दुआ करें अल्लाह ताला हमें इसी तरह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम बिला लिहाज मजहब मिल्लत हर शख्स के घर तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।